Hello friends, welcome to HP Environment Academy. In the last series of lecture, we are discussing the linear differential equation with constant coefficient. So we have seen that the total solution is given by complementary function plus particular integral. Okay, so complementary function we have seen how to find using the auxiliary equation. Okay, and for finding the particular integral, there are types. Okay, so for total solution is given by complementary function plus particular integral. Okay, so this is complementary function is a complementary function we find using auxiliary equation. Okay, and for particular integral we have types. Okay, so we have discussed up to type 4. Okay, now in this particular lecture we will discuss type 5. Okay, so this up to type 4 we have already discussed, so let us discuss this type 5. So the structure of type 5 is 1 upon f of d times of x into v, and v is a function of x. This is nothing but, let us take x outside, so x times of 1 upon f of d times of v minus first differentiation of this function f upon f of d whole square times of v. Okay, so this is the basic structure. Let us start solving the problems based on this format. Okay, 1 upon f of d times of xv. Okay, so let us start discussing the problems. Okay, so we have the first one as d2y upon dx square plus 4 times of y is equal to x sin x. Okay, so this we can write as, and d is our operator, so d is nothing but d upon dx, so we can write this as d square plus 4 times of y is equal to x sin x. Okay, so we have the total solution as complementary function plus particular integral. Okay, so we have, let us find the complementary function. So for this, the auxiliary equation is m square plus 4 is equal to 0. So from here m is equal to 0 plus minus 2i. Okay, so we have studied that if the value of m is a plus minus b times of I, then the complementary function is e to the power ax times of c1 cos bx plus c2 sin bx. Okay, so here a is equal to 0 and b is 2. So we have the complementary function as e to the power 0 is 1. So we have c1 cos 2x plus c2 sin 2x. Okay, so we have the complementary function as c1 cos 2x plus c2 sin 2x. Okay, let us further simplify this. So this is our complementary function. Now let us find the particular integral. Okay, so let us write down like this. Particular integral is 1 upon d square plus 4 times of x sin x. Okay, and we have the type 5. The structure of type 5 is 1 upon f of d x times of v, where v is a function of x. So here this is our v. Okay, and this is our function of d. Okay, so let us break this. So we have this as x times of 1 upon f of d times of v minus f of d, first differentiation, upon f of d whole square times of v. Okay, so we have 1 upon d square plus 4 x times of sin x is equal to x times of 1 upon f of d, 1 upon f of d is d square plus 4 sin x minus single differentiation, so this is 2d, सिंगल डिफरेंशिएशन ना, एफ डैश डी क्या हो जाएगा, डी अपॉन डी ऑफ कैपिटल डी, डी स्क्वायर प्लस 4 क्या हो जाएगा 2d, और नीचे में क्या है एफ डी का होल स्क्वायर, सो दिस इज डी स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर टाइम्स ऑफ साइन एक्स. ओके, अब देखो ये हमने देखा था एफ ऑफ डी साइन ए एक्स होता है अगर, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं हम इस सिचुएशन में, क्या करते हैं डी स्क्वायर की जगह पे ए स्क्वायर रखते, माइनस ए स्क्वायर रखते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे देखो साइन एक्स है ना, तो यहाँ ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू 1 है, तो डी स्क्वायर की जगह क्या करोगे, माइनस 1 स्क्वायर रखना होगा. सिमिलरली हियर. ओके, सो लेट अस प्लेस द वैल्यू. ओके, सो वी हैव 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 4 एक्स साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स टाइम्स ऑफ 1 अपॉन डी स्क्वायर की जगह
माइनस वन स्क्वायर मतलब माइनस वन, सो माइनस वन प्लस फोर 3 हो जाएगा साइन एक्स माइनस 2d, ओके, अपॉन डी स्क्वायर की जगह माइनस वन, तो 4 माइनस वन 3, so this is 9 sin x, okay, so we have this as 1 upon d square plus 4 x sin x is equal to x upon 3 sin x minus 2 upon 9, single differentiation of this one, differentiation of this sin x, okay, so differentiation of sin x is cos x, to 2 upon 9 cos x, ठीक है. This is our this is nothing but the particular integral, okay, so the total solution will be CF plus PI, okay, तो total solution क्या हो जाएगा? Total solution is YC plus YP, so this is nothing but C1 cos 2x plus C2 sin 2x plus this one x upon 3 sin x minus 2 upon 9 cos x, okay, this is the general solution, okay, that is total solution. Now let us discuss the second one. देखो ये क्या है सेकंड वन, डी स्क्वायर प्लस फोर टाइम्स ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स कॉस एक्स, ठीक है, दिस इज आवर वी, ओके, एंड दिस इज आवर एफ ऑफ डी, ओके, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमने ऑलरेडी देखा है ना कैसे निकालना है, ओके, सो लेट अस फोकस ऑन फाइंडिंग द पर्टिकुलर इंटीग्रल, ओके, so similarly you can find the auxiliary equation as m स्क्वायर प्लस फोर, तो इससे क्या हो जाएगा m इज इक्वल टू प्लस माइनस 2i हो गया, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या हो जाएगा c1 cos 2x प्लस c2 sin 2x. सिमिलरली you can in all the questions you can find the complementary function, okay. Now the purpose here is to focus on the finding particular integral, okay, so we have the particular integral as 1 upon d square plus 4 x times of cos x, okay, let us take this is our v and this is our f of d, so we have the, let us break this using this structure, so we have x times of 1 upon d square plus 4 cos x minus differentiation of this one, so this is 2d upon d square plus 4 whole square cos x, okay, so we have this as x times of, देखो अब यहाँ पे क्या है a की वैल्यू 1 है, तो d स्क्वायर की जगह क्या रखते हैं माइनस ए स्क्वायर रखते हैं ना, ये हमने देखा है ना, तो डी स्क्वायर की जगह यहाँ क्या है ए की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे माइनस वन आ जाएगा ना, तो माइनस वन प्लस फोर, तो 1 अपॉन 3 कॉस एक्स माइनस 2d अपॉन, अब यहाँ पे रखो डी स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या रखोगे माइनस वन स्क्वायर है ना, डी स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर होता है तो माइनस वन स्क्वायर, मतलब माइनस वन रखना है, माइनस वन प्लस फोर तो 3 हो गया, और 3 का होल स्क्वायर 9 cos x, okay, so we have this as x upon 3, this is cos x माइनस 2 अपॉन 9 डिफ्रेंशिएशन ऑफ cos x मतलब माइनस साइन x, तो ये प्लस साइन x हो जाएगा, ठीक है, दिस इज आवर पर्टिकुलर इंटीग्रल, तो टोटल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, टोटल सॉल्यूशन विल बी दिस वन प्लस दिस वन, तो ये मेरा क्या है पार्टिकुलर इंटीग्रल, ये मेरा क्या है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, तो लेट अस ऐड दिस, सो वी हैव दिस एज c1 cos 2x प्लस c2 sin 2x प्लस x अपॉन 3 cos x प्लस 2 अपॉन 9 sin x, okay, this is the total solution, that is the general solution, okay. Now we have this as, let us discuss the third one. Let us discuss third one. So we have d square minus 4 y is equal to x times of cos 2x, okay, so this is f of d and this is our v, okay, so we have the auxiliary equation for finding the complementary function m square minus 4 is equal to 0, तो यहाँ से m की वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस माइनस, सॉरी दिस m इसकी वैल्यू प्लस माइनस 2 है ना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज इक्वल टू c1 e टू द पावर 2x प्लस c2 e टू द पावर ऑफ माइनस 2x, okay. Now let us find the particular integral, so we have 1 upon d square minus 4 x times of cos 2x, let us break this, so we have this as x times of 1 upon d square minus 4
cos 2x minus differentiation of this one, so this is 2d upon and whole square of this cos 2x. ओके, सो वी हैव दिस एज x टाइम्स ऑफ डी स्क्वायर की जगह क्या रखना है, यहाँ a की वैल्यू 2 है ना, तो क्या रखते हैं डी स्क्वायर की जगह पे माइनस ए स्क्वायर, तो डी स्क्वायर की जगह पे क्या होगा, a की वैल्यू 2 है तो हो जाएगा माइनस 2 स्क्वायर, मतलब -4 है ना, तो -4 यहाँ रखने पे क्या होगा 1 अपॉन दिस इज -8 cos 2x माइनस 2d अपॉन डी स्क्वायर की जगह पे -4 तो ये हो जाएगा -8 एंड 8 का पावर -8 का पावर 2 है ना 64 cos 2x. Okay, so this gets cancelled to 32. So we have minus x upon 8 cos 2x minus 1 upon 32 times of differentiation of this one cos 2x, तो क्या हो जाएगा 2 times of minus sin 2x है ना, तो this gets cancelled to 16. So we have this as minus x upon 8 cos 2x plus this is minus plus 1 upon 16 sin 2x. This is the particular integral. This is particular integral and this is our complementary function. Let us add this. So we have the total solution as this one plus this one. So we have c1 e to the power 2x plus c2 e to the power minus 2x plus minus x upon 8 cos 2x plus 1 upon 16 sin 2x. Okay, this is the general solution, okay, or total solution. Now let us discuss the fourth one. Fourth one, okay, so we have d square plus 2 times of y is equal to x sin x. Let us find the complementary function. So we have the auxiliary equation is m square plus 2 is equal to 0. So from here we have m is equal to plus minus root under 2i. Okay, so we have the complementary function as c1 cos of root under 2x plus c2 sine of root under 2x. Okay, this is the complementary function. Now let us find the particular integral. The particular integral is 1 upon d square plus 2 x sin x. Okay, so let us break this. So we have x times of 1 upon d square plus 2 sin x minus differentiation of this one. So this is 2d upon d square plus 2 whole square sin x. So we have this as x times of d square की जगह क्या रखना होगा, यहाँ पे a की वैल्यू 1 है तो -1 स्क्वायर, दिस इज -1, तो -1 plus 2 1, so 1 upon 1 sin x माइनस 2d अपॉन, अब यहाँ पे d स्क्वायर की जगह -1 रखना है तो क्या हो जाएगा -1 और +2 तो 1 स्क्वायर sin x. So this is nothing but x sin x minus 2 cos x. This is the particular integral. This is particular integral and this is the complementary function. So let us add this. So for finding the general solution, so this is y is equal to yc plus yp. So this is nothing but c1 cos root under 2x plus c2 sin root under 2x plus x sin x minus 2 cos x. This is the general solution. Okay, let us discuss the fifth one. Okay, so we have the fifth one as this one. Fifth one is this one. So this we can write as d square minus 2d plus 1 times of y is equal to x sin x. Okay, let us find the complementary function. So for finding this, let us write the auxiliary equation as m square minus 2m plus 1 is equal to 0. So from here m minus 1 whole square is equal to 0. So we have m is equal to 1 comma 1. Okay, so roots are repeated. So for such case we have the complementary function as c1 plus c2 x e to the power x. Okay, यहाँ पे 1 है ना, तो coefficient of x will be 1. Okay, so now let us find the particular integral. This is nothing but 1 upon d square minus 2d plus 1 times of x sin x.
So let us break this. So we have x times of 1 upon d square minus 2d plus 1 sin x minus differentiation of this. So this is 2d minus 2 upon 2d minus 2 upon d square minus 2d plus 1 whole square sin x. Okay. So we have this as x times of 1 upon, अब देखो d स्क्वायर की जगह क्या रखना होगा, -1 स्क्वायर, बिकॉज द वैल्यू ऑफ a इज 1 हेयर, दिस इज -1, तो d स्क्वायर की जगह -1 रखो, -1 रखने पे -1 और ये 1 कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन -2d साइन एक्स माइनस 2 टाइम्स ऑफ d -1 अपॉन, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, दिस वन, यहाँ भी डी स्क्वायर की जगह -1 आएगा, -1 यहाँ +1 कैंसिल हो गया, और -2d का होल स्क्वायर, तो 4d स्क्वायर साइन एक्स. ओके, सो दिस गेट्स कैंसल टू 2, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2d स्क्वायर. ओके, so we have this as minus x upon 2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इज माइनस कॉस एक्स. ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, माइनस ऑफ 1 upon let us take 1 upon 2 outside, this is, so from here we have 1 upon d minus 1 upon d square of sin x. Okay, so we have this as x upon 2 cos x minus 1 upon 2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स. ठीक है, माइनस ऑफ, अब देखो फर्स्ट टाइम इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स, और सेकेंड टाइम्स इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स, और माइनस पहले से है तो माइनस साइन एक्स है ना, और यहाँ पे माइनस है, माइनस पहले से है तो माइनस माइनस प्लस, प्लस कॉस साइन एक्स. ओके, सिंगल इंटीग्रेशन ऑफ दिस वन, एक बार इंटीग्रेशन करेंगे साइन एक्स से तो क्या आएगा, माइनस कॉस एक्स आया, और उसके बाद फिर से इंटीग्रेशन करो तो कॉस एक्स का साइन एक्स होता है, और पहले से है माइनस, पहले से है तो माइनस साइन एक्स है ना, और यहाँ पे माइनस एक और है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस साइन एक्स. तो दिस इज नथिंग बट एक्स अपॉन 2 कॉस एक्स, दिस इज प्लस, माइनस बाहर ले लो तो प्लस 1/2, दिस इज कॉस एक्स माइनस साइन एक्स. ठीक है, दिस इज पर्टिकुलर इंटीग्रल. तो टोटल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू c1 प्लस c2x e टू द पावर x प्लस x अपॉन 2 cos x प्लस 1 अपॉन 2 cos x माइनस साइन x. ओके, दिस इज द जनरल सॉल्यूशन. लेट अस डिस्कस द सिक्स्थ वन. Let us discuss the sixth one. So we have this as d square minus 2d plus 1 into y is equal to x e to the power x sin x. ठीक है, कैसे करोगे इसको, देखो इसमें तो ऑलरेडी देखा ना हमने, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या आया था, वाई सी इज इक्वल टू c1 प्लस c2x e टू द पावर x. इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगा, m-1 होल स्क्वायर, तो रूट क्या हो गया, m इज इक्वल टू 1,1 रिपीटेड रूट है ना. अब लेट अस फाइंड द पर्टिकुलर इंटीग्रल. So this is 1 upon d square minus 2d plus 1 x e to the power x sin x. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, देखो पहले क्या करना है, यहाँ से इसको ऐसे लिखो, e to the power x को पहले बाहर निकालना होगा. तो हमने क्या देखा था, 1 upon f of d e to the power x टाइम्स ऑफ फंक्शन ऑफ x. इसको कैसे करते हैं, अगर e to the power x को बाहर निकालते हैं, सॉरी लेट अस राइट डाउन इट एज ax e टू द पावर x. तो e टू द पावर ax को अगर हम बाहर निकालते हैं तो क्या करते हैं, यहाँ पे 1 अपॉन f ऑफ d की जगह पे क्या लिखते हैं, d प्लस a हो जाता है, दिस इज d प्लस a, और e टू द पावर ax को बाहर निकाल दिया और यहाँ पे v रह जाएगा. ठीक है, तो सिमिलरली वी आर टेकिंग e टू द पावर x आउटसाइड है ना, e टू द पावर x को बाहर निकालना है, और x का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो d के जगह पे क्या हो जाएगा, d के जगह पे d प्लस 1 रखना होगा. समझ में आ रहा है, एज वी आर पुटिंग इन केस ऑफ दिस e टू द पावर x, इफ वी आर टेकिंग दिस आउटसाइड देन वी आर रिप्लेसिंग d विथ d प्लस a.
तो यहाँ पे d+1 हो जाएगा बिकॉज द कोफिशिएंट ऑफ x इज 1. ओके, नाउ लेट अस फर्दर सिंप्लीफाई दिस. So we have this as e to the power x बाहर निकाला तो 1 upon, let us write down this as d minus 1 whole square, है ना. So we have this as d plus 1 minus 1 whole square x sin x, है ना. तो यहाँ से क्या आएगा देखो, 1 माइनस 1 ये कैंसिल हो गया तो डी स्क्वायर आ गया. ठीक है, तो दिस इज e टू द पावर x 1 अपॉन एफ ऑफ डी हो गया ना, तो ये हो जाएगा x टाइम्स ऑफ 1 अपॉन डी स्क्वायर साइन x माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ दिस वन 2d अपॉन डी स्क्वायर का होल स्क्वायर d टू द पावर 4 साइन x. ठीक है, तो दिस इज नथिंग बट e टू द पावर x टाइम्स ऑफ सिंगल डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन x माइनस कॉस x, है ना. और इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करना है तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ कॉस एक्स का क्या होता है डिफ्रेंशिएट इंटीग्रेशन साइन एक्स, और माइनस पहले से है तो माइनस साइन एक्स. दिस इज माइनस साइन एक्स. ठीक है, और माइनस 2 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ 1 अपॉन डी क्यूब साइन एक्स. तो साइन एक्स का 3 बार इंटीग्रेशन करना है. ठीक है, तो देखो 1 अपॉन डी स्क्वायर 1 अपॉन डी क्यूब. देखो तो एक बार इंटीग्रेशन करने पे क्या होगा साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स, है ना. साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, और कॉस एक्स का क्या होता है इंटीग्रेशन साइन एक्स, और माइनस पहले से है तो माइनस साइन एक्स. ठीक है, एक बार और करो, साइन एक्स को एक बार और इंटीग्रेट करने पे क्या होगा, साइन एक्स को एक बार और इंटीग्रेट करने पे आएगा तुम्हारा माइनस कॉस एक्स, और माइनस पहले से है तो प्लस कॉस एक्स, है ना. 1 बाई डी क्यूब साइन एक्स इज कॉस एक्स. Okay, so let us further simplify this. So this is nothing but minus of e to the power x sin x plus 2 cos x. This is nothing but particular integral. The total solution is y is equal to yc plus yp, है ना. So this is nothing but c1 plus c2 x e to the power x minus e to the power x sin x plus 2 cos x. Okay, this is the general solution. Now let us proceed further. ओके, सो वी हैव द सेवेंथ वन. देखो सेवेंथ वन में क्या है, दिस इज डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2 टाइम्स ऑफ y इज इक्वल टू x e टू द पावर x sin x. ओके, हाउ वी कैन सॉल्व दिस, कैसे सॉल्व करोगे. देखो इसमें ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालो. ऑक्सिलरी इक्वेशन दिस इज m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 2 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से क्या आएगा, m इज इक्वल टू m प्लस 1 टाइम्स ऑफ m प्लस 2, यही आएगा ना. तो m की वैल्यू -1 और -2. So we have the complementary function as c1 e to the power minus x plus c2 e to the power minus 2x. Okay, so this is our complementary function. Now let us find this one particular integral. Particular integral कैसे निकालोगे, this is 1 upon d square plus 3d plus 2 times of x e to the power x sin x. ठीक है, अब e to the power x को बाहर निकालना है ना. तो d के जगह पे क्या रखना पड़ेगा, d के जगह पे इफ़ 1 अपॉन एफ ऑफ डी ई टू द पावर एक्स होता है तो क्या करते हैं, e टू द पावर एक्स टाइम्स ऑफ v अगर है, v इज़ द फंक्शन ऑफ x, तो e टू द पावर एक्स को बाहर निकाल रहे हैं तो क्या करते हैं, d की जगह पे d प्लस ए रखना है ना. तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एफ ऑफ डी प्लस ए, और e टू द पावर एक्स बाहर आ गया टाइम्स ऑफ v. तो सिमिलरली हेयर वी हैव टू रिप्लेस d विथ d प्लस 1 बिकॉज द कोफिशिएंट ऑफ x इज़ 1 हेयर. तो रखो यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन डी प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स ऑफ डी प्लस 1 प्लस 2. ठीक है, और e टू द पावर x बाहर आ गया तो x sin x. ठीक है, लेट अस फर्दर सिंप्लीफाई दिस. तो e टू द पावर x 1 अपॉन, अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो d प्लस 1 का ब्रेक करोगे तो डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1, और यहाँ से
3d+3 आ गया और यहाँ पे 2 आ गया, तो ऐड करो तो डी स्क्वायर तो आ गया, और 2d+3d 5d, और यहाँ से क्या आएगा 1 और 3, ये 4 और ये 2 6 + 6 x sin x। ठीक है, लेट अस फर्दर सिंप्लीफाई दिस। अब देखो ये वाला इस फॉर्म का आ गया ना, ये पूरा 1/f(d) x टाइम्स ऑफ v। लेट अस break this. So we have this as x times of 1/d square plus 5d plus 6 times of sin x minus differentiation of this. This is 2d plus 5 upon this is d square plus 5d plus 6 whole square times of sin x. Okay, so let us further simplify this. So we have e to the power x times of d square की जगह क्या रखना है, और यहाँ पे देखो कोफिशिएंट ऑफ ए इज़ 1 हेयर, तो डी स्क्वायर की जगह क्या रखते हैं -1 स्क्वायर, तो -1 रखना है। -1 रखने पे 1/5d+5 आ जाएगा ना, तो 5 टाइम्स ऑफ d+1 सॉरी sin x माइनस दिस इज 2d + 5 अपॉन, अब यहाँ पे देखो डी स्क्वायर की जगह -1 रखना है, तो ये हो जाएगा 5d + 5, तो ये हो जाएगा 25, सॉरी देखो 5d + 5 आया, तो 5 कॉमन लिया d+1, और पूरे का होल स्क्वायर है, तो 25 टाइम्स ऑफ d+1 होल स्क्वायर। ठीक है, sin x है ना। अब d+1 होल स्क्वायर है, इसको क्या लिखेंगे, ब्रेक कर दो, तो ये हो जाएगा d स्क्वायर + 2d+1 है ना। अब देखो sin x है, यहाँ डी स्क्वायर है, यहाँ पे sin x है, तो डी स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे, ए की वैल्यू 1 है, -a² होता है ना, तो d ऑफ -1² मतलब -1, तो यहाँ -1 रखने पे क्या होगा, -1 + 2d+1, तो डी स्क्वायर की जगह -1 रखो, तो ये कैंसिल हो गया, तो 1/2d हो गया इंटू 2d। ठीक है, लेट अस फर्दर सिंप्लीफाई दिस। अब देखो यहाँ पे क्या है, d+1 है, तो हमें यहाँ पे डी स्क्वायर का टर्म चाहिए होगा, बिकॉज वी हैव टू प्लेस डी स्क्वायर एज -1, तो यहाँ पे d-1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, d-1, और d-1 से मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर -1 हो जाएगा, है ना, और उसके बाद डी स्क्वायर की जगह -1 रखना होगा। लेट अस फर्दर सिंप्लीफाई दिस। पार्टिकुलर इंटीग्रल e टू द पावर x, और यहाँ पे होगा देखो d-1, और यहाँ पे डी स्क्वायर की जगह -1 रखना है ना, तो ये हो जाएगा -2, तो ये हो जाएगा x टाइम्स ऑफ d-1 अपॉन -10 sin x। ठीक है, माइनस ऑफ डिवाइड करो 2d अपॉन दिस वन, 25 टाइम्स ऑफ 2d, तो ये हो जाएगा 1/25, और यहाँ पे 1/10, 1/10, 1/d sin x। ठीक है, 5/25 टाइम्स ऑफ 2d, तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, 5 5 जो 25, 5 टाइम्स ऑफ 2 10 है ना। लेट अस फर्दर सिंप्लीफाई दिस, so this is nothing but yp is equal to e to the power x minus x/10, this is differentiation of sin x cos x minus 1 times of sin x, है ना, माइनस 1/25 sin x, और माइनस 1/10, और इंटीग्रेशन ऑफ sin x क्या होगा, माइनस cos x, so this is plus cos x। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल इज e to the power x/10 sin x minus cos x minus 1/25 sin x plus 1/10 cos x। Okay, this is the particular integral, and this is our complementary function. So y total solution is yc plus yp. Okay, now let us discuss this question number 8.
Okay, so this is nothing but d square minus 1 times of y is equal to x sin x plus 1 plus x square e to the power x. ठीक है, तो यहाँ से पर्टिकुलर इंटीग्रल, लेट अस फाइंड द डायरेक्टली पर्टिकुलर इंटीग्रल बिकॉज लेट, चलो ठीक है बता देता हूँ. कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑक्सिलरी इक्वेशन एम स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0. तो m is equal to m square is equal to 1. so from here m is equal to प्लस माइनस 1. ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज c1 e टू द पावर x प्लस c2 e टू द पावर माइनस x. ठीक है, अब देखो पर्टिकुलर इंटीग्रल, लेट अस फाइंड द पर्टिकुलर इंटीग्रल. पर्टिकुलर इंटीग्रल इज 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 1 x sin x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर e टू द पावर x 1 अपॉन दिस इज डी स्क्वायर माइनस 1. ठीक है, अब देखो पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होगा, इज इक्वल टू x टाइम्स ऑफ 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 1 साइन एक्स minus differentiation of this one, so this is 2d upon d square minus 1 whole square sin x. ठीक है, प्लस यहाँ से e टू द पावर x को बाहर निकालना है, तो e टू द पावर x बाहर निकाल दिया, तो 1 अपॉन d की जगह पे d प्लस 1, तो d प्लस 1 होल स्क्वायर, तो d प्लस 1 होल स्क्वायर हो जाएगा, d प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 1 1 प्लस एक्स स्क्वायर. ठीक है, तो ये क्या होगा देखो, d स्क्वायर प्लस 1, तो क्या हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1 और यहाँ माइनस 1, तो ये कैंसिल हो गया, तो डी स्क्वायर प्लस 2d, डी स्क्वायर प्लस 2d, है ना. लेट अस फर्दर सिंप्लीफाई दिस. सो वी हैव पर्टिकुलर इंटीग्रल इज x टाइम्स ऑफ डी स्क्वायर की जगह माइनस 1 रखेंगे, तो ये 1 अपॉन माइनस 2 साइन एक्स. ठीक है, यहाँ पे देखो माइनस ऑफ 2d अपॉन डी स्क्वायर की जगह माइनस 1, तो माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो 4 साइन एक्स प्लस e टू दी पावर x. अब यहाँ पे 2d कॉमन ले लो, 2d कॉमन लेने पे क्या होगा, 1 प्लस डी स्क्वायर अपॉन 2d, डी स्क्वायर पर 2d क्या हो जाएगा, d अपॉन 2, 1 प्लस एक्स स्क्वायर. ठीक है, लेट अस फर्दर सिंप्लीफाई दिस, तो ये यहाँ से 2 हो जाएगा, तो वाई पी इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन 2 साइन एक्स माइनस 1 बाई 2 डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स प्लस हाफ ऑफ e टू दी पावर x 1 upon d, and this is 1 plus d upon 2 whole minus 1 1 plus x square. ठीक है, let us further simplify this. Particular integral is minus x upon 2 sin x minus 1 upon 2 cos x plus 1 upon 2 e to the power x 1 upon d. Let us break this. ये हमने देखा है ना, 1 प्लस एक्स टू द पावर माइनस 1 क्या होगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स 4 लाइक दिस. ओके, अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो डी स्क्वायर तक हमको जाना पड़ेगा, डी टू द पावर क्यूब, थर्ड टाइम डिफ्रेंशिएशन करेंगे एक्स स्क्वायर का तो 0 हो जाएगा, तो हम ब्रेक कहाँ तक करेंगे, 1 माइनस डी अपॉन 2 प्लस डी अपॉन 2 का होल स्क्वायर, मतलब डी स्क्वायर अपॉन 4 यहाँ पे छोड़ देंगे, क्योंकि आगे डी टू द पावर क्यूब तक जाएंगे तो क्या होगा, 0 हो जाएगा, तो मतलब नहीं है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर. ठीक है, लेट अस फर्दर सिंप्लीफाई दिस. So this is the particular integral is minus x upon 2 sin x minus 1 upon 2 cos x. ठीक है, प्लस e to the power x upon 2 1 upon d, and this is देखो 1 plus x square times of 1, तो 1 plus x square minus half of single differentiation of this one, तो half of 2x आ जाएगा, है ना, माइनस ऑफ हाफ ऑफ डिफ्रेंशिएशन ऑफ दिस वन, तो 2x, तो यहाँ से कैंसिल, तो माइनस x. ठीक है, प्लस 1 अपॉन 4 1 अपॉन 4 टाइम्स ऑफ डबल डिफ्रेंशिएशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो सिंगल डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 2x, और एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे 2, तो 1 अपॉन 4 टाइम्स ऑफ 2 मतलब माइनस 1/2, सॉरी प्लस 1/2 ना, यहाँ पे प्लस है, प्लस डी स्क्वायर अपॉन 4, और डी स्क्वायर ऑफ दिस इज 2, तो 2 अपॉन 4 1/2, सही है. ठीक है, अब देखो ये क्या हो जाएगा, इस टोटल क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3/2, तो यहाँ पे रिप्लेस करो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3/2. ठीक है,
Let us further simplify this. So we have yp is equal to minus x upon 2 sin x minus 1 upon 2 cos x plus e to the power x upon 2 इंटीग्रेशन ऑफ दिस वन. सो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स का एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3x अपॉन 2. ठीक है, तो यहाँ से x कॉमन ले लो तो वाई पी इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन 2 साइन एक्स माइनस 1 अपॉन 2 कॉस एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स अपॉन 2. x कॉमन ले लो तो यहाँ पे x टाइम्स ऑफ ई एक्स. दिस इज एक्स स्क्वायर अपॉन 3 माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस 3 अपॉन 2. अब देखो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करो और 6 से डिवाइड करो तो 6 टाइम्स ऑफ 2 12 हो जाएगा. ठीक है, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल इज माइनस एक्स अपॉन 2 साइन एक्स माइनस 1 अपॉन 2 कॉस एक्स प्लस एक्स ई टू द पावर एक्स अपॉन 12. देखो 6 अपॉन 3 2 होगा एक्स स्क्वायर माइनस दिस इज 6 अपॉन 2 3x प्लस 9. ओके, तो दिस इज द पर्टिकुलर इंटीग्रल. तो टोटल सोल्यूशन क्या हो जाएगा y is equal to this one plus this one. So this is our complementary function, this is our particular integral. So we have c1 e to the power x plus c2 e to the power minus x plus ये ऐड करना है ना, तो माइनस एक्स अपॉन 2 साइन एक्स माइनस 1 अपॉन 2 कॉस एक्स प्लस एक्स ई यहीं लिखो ना एक्स ई टू द पावर एक्स अपॉन 12 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9. ठीक है, दिस इज द जनरल सोल्यूशन. नाउ लेट अस डिस्कस द नाइन्थ वन. So we have the ninth one as this one. This is d square minus 1 times of y is equal to x sin x plus x square e to the power x. Okay, how we can solve this? Let us find the particular integral. So let us find the complementary function first. So the auxiliary equation is m square minus 1 is equal to 0. So from here m square is equal to 1. So we have the m is equal to plus minus 1. Okay. So we have the complementary function as c1 e to the power x plus c2 e to the power minus x. Now the particular integral is 1 upon d square minus 1 x sin x plus 1 upon d square minus 1 x square e to the power x. Okay. Now let us further simplify this. So we have x times of 1 upon d square minus 1. Let us break this one. Okay, और इसमें क्या करना होगा e to the power x को बाहर निकालना होगा. So d square minus 1 sin x minus differentiation of this is our v and this is x times of v 1 upon f d x times of v. Okay. This is basically the type 5 minus differentiation of this one. So 2d upon d square minus 1 whole square sin x. ठीक है, प्लस अब देखो e to the power x को बाहर निकालो 1 अपॉन और d की जगह पे क्या रखना पड़ेगा d की जगह पे d प्लस 1. तो d प्लस 1 का होल स्क्वायर d प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1. तो d स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1 माइनस 1. तो ये कैंसिल हो गया और यहाँ पे एक्स स्क्वायर रह जाएगा. ठीक है, तो वी हैव दिस एज एक्स टाइम्स ऑफ और डी स्क्वायर की जगह पे क्या रखना माइनस 1 स्क्वायर माइनस 1. तो d अपॉन माइनस 2 साइन एक्स माइनस 2d अपॉन और डी स्क्वायर की जगह माइनस 1. तो माइनस 2 का होल स्क्वायर मतलब 4 साइन एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स 1 अपॉन 2d 1 प्लस डी स्क्वायर अपॉन 2d. ठीक है, एक्स स्क्वायर और यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा. तो x अपॉन 2 माइनस साइन एक्स माइनस 1 अपॉन 2 डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स है ना प्लस ई टू द पावर एक्स टाइम्स ऑफ 1 अपॉन 2d और यहाँ से क्या आएगा ये कैंसिल हो गया क्या होएगा d अपॉन 2 हो जाएगा. तो ये हो जाएगा 1 प्लस डी अपॉन 2 माइनस 1 एक्स स्क्वायर. तो इसको ब्रेक कहाँ तक करेंगे डी स्क्वायर वाले टर्म तक करेंगे ना. डी टू द पावर क्यूब आ जाएगा तो वो तो डी टू द पावर क्यूब एक्स स्क्वायर क्या होगा 0 होगा. तो आगे आगे ब्रेक नहीं करेंगे. तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ एक्स अपॉन 2 साइन एक्स माइनस 1 अपॉन 2 कॉस एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स अपॉन 2 टाइम्स ऑफ 1 अपॉन डी. दिस इज 1 माइनस डी अपॉन 2 प्लस डी स्क्वायर अपॉन 4 लाइक दिस एक्स स्क्वायर. ठीक है, नाउ लेट अस फर्दर सिंप्लीफाई दिस.
minus x upon 2 sin x minus 1 upon 2 cos x plus e to the power x upon 2 times of 1 upon d, and this is देखो 1 times of x square, so this is x square minus 1 upon 2 differentiation of x square 2x, ठीक है, प्लस 1 upon 4 टाइम्स ऑफ डबल डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर 2, सिंगल डिफ्रेंशिएशन इज 2x और एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2, ठीक है. सो वी हैव दिस एज माइनस एक्स अपॉन 2 साइन एक्स माइनस 1 अपॉन 2 कॉस एक्स प्लस e टू द पावर x अपॉन 2 टाइम्स ऑफ 1 अपॉन d, and this is x square minus x plus 1 upon 2, ठीक है. Let us further simplify this. So we have this as minus x upon 2 sin x minus 1 upon 2 cos x plus e to the power x upon 2 और इंटीग्रेशन ऑफ दिस वन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स अपॉन 2, ठीक है. सॉरी इंटीग्रेशन करना है ना, तो 1 अपॉन डी तो हट जाएगा ना. ओके अब देखो, फॉर फर्दर सिंप्लीफाइंग दिस लेट अस मल्टीप्लाई दिस बाय 6 एंड डिवाइड बाय 6. तो 6 टाइम्स ऑफ 2 इज 12, ठीक है. अब देखो क्या आ जाएगा, माइनस एक्स अपॉन 2 साइन एक्स माइनस 1 अपॉन 2 कॉस एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स अपॉन 12 टाइम्स ऑफ, देखिए देखो 6 अपॉन 3 2x क्यूब माइनस दिस इज 3x स्क्वायर प्लस 3x, ठीक है, और x कॉमन आ जाएगा इसमें से, तो हो जाएगा माइनस एक्स अपॉन 2 साइन एक्स माइनस 1 अपॉन 2 कॉस एक्स प्लस x e टू द पावर x अपॉन 12, दिस इज 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3. ओके, this is our particular integral. So total solution is y is equal to complementary function plus particular integral. You can add this one and this one for the general solution. Okay, so this is all about the type 5. Okay, thank you.